स्वागत आपका आज वीडियो में। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है दिस केयर टेकर एट बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क हैज अ स्पेशल कनेक्शन विद वाइल्ड कब्स। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल के ओरिजिनल लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में सही पढ़ दिए थे, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। This is an Indian leopard, a solitary predator. This big cat can kill a human being with a single bite. इसलिए मैं हैरान हो रही थी। चिने बैली बा दाजो। But when Savitri Amma calls out, Chinnu trots towards her. चमे ओ न जा। Soon, other leopards also come and join in the show of affection. बंगरा जगलाडबार्ದು ಯಾಕೆ? In a country like India, where these big cats are often caught in a human-wildlife conflict, this is a case of a rare bonding. Meet Banairghatta Biological Park's own animal whisperer, Savitri Amma. Just over 20 kilometers from the Vidhana Sauda in Bengaluru, the Banairghatta Biological Park is a place of great ecological significance. At present, the 731-hectare park has 2,300 animals belonging to 102 species. These include big cats like lions, tigers, and leopards. It also has animals like elephants and bears. Many of the animals at the park were rescued from life-threatening situations and rehabilitated here. It is at this park that Savitri Amma also found a new lease of life. This 45-year-old park employee came to work here almost by accident when she was offered the job in 2002 on compassionate grounds after her husband passed away. She started to work among the cleaning staff. Soon, the officers noticed her ease with different animals at the park. It wasn't long before she was shifted to the zoo hospital as a caretaker. ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಿನಿಮಾ ಬಂಗಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಮಗಳೇ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ. ಅವ್ವ ಬರ್ತವೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. Every day, Savitri Amma reaches the zoo hospital at 10 a.m. The hospital receives animal cubs from different parts of Karnataka. These cubs are either injured or have lost their mother. In both cases, they are not able to survive on their own. For many animals in Banairghatta Biological Park, she soon became a motherly figure. ಮರಿಲಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದು ಬಾಯಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತದ ಅಂತ, ಕಣ್ಣೇ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವು. ನಾಯಿ ಲೆಗ್ ಮೂಮೆಂಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 1 ml 5 ml ಆ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಡ್ಸೋ ಹಾಲು ಕೂಡ್ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಾವಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಲನ್ನ ಮಗು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನಿಧಾನ ಆ ಥರ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಡ್ರೆಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನೆತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. Once she steps into the cage, Savitri Amma is one with her unusual surroundings. After the enclosure is cleansed, the cubs have to be fed. ನಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚಿನ್ನು ಬಂಗಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದು ರೀಸಸ್ಸು ಕಕ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಿರ್ಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ. Goat milk and chicken are given to cubs. Each cub is examined for health issues. The unhealthy cubs are isolated from the rest and receive medical treatment. The zoo hospital is equipped with a state-of-the-art laboratory. It has its own operating theatre, radiology lab, and post-mortem facilities.
These facilities make the BBP among the few zoos in the country with multi-specialty services. Once the cubs are 6 months old, they are shifted to the safari area of the park. It is a bittersweet moment for Savitri Amma and other caretakers at the hospital. ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳ್ನ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಳ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಚೆ ಹೋದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ದಿವಸ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ 3 ಚಿರತೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಮರಿಗಳು. ಅವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವತ್ರ ಕಳ್ಸೋಕೆ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವು. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ, ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಚಿನಿ ಬಂಗಾರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತದೆ. Savitri Amma has nurtured nearly 80 cubs from different animals. Now, more such animals are being sent to Banerghatta due to excellent care and treatment provided by the veterinary doctors and caretakers. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಚಿರತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತವೆ. ಹುಲಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಬ್ಕೊಬಿಡ್ತಾವೆ ಬಂದು, ಅವಾಗ ನಾವು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿಂಹ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಥರನೇ ನಾವು ಸಾಕ್ತೀವಿ. एक ऐसे जानवर को जो है पेट बनाना जो है, जिसे देखकर हमेशा आपके अंदर ना एक डर का माहौल जो है वो पैदा हो जाता है कि भाई अगर ये जो है ना सलाखों के इस पार आ गया ना तो मेरी जान जो है ना वो निकल जाएगी। लेकिन भाई मैं कहता हूँ कि वो देखें, उनकी अटैचमेंट देखें, फिर वही बात हो जाती है ना कि आपका कनेक्शन जो होता है ना हर इंसान से कह लें या जानवर से कह लें, वो डिफरेंट होता है। अब वही सेम जानवर, बेशक वो जानवर का बच्चा ही क्यों ना हो, यानी शेर का बच्चा क्यों ना, मुझे उसे डर लगेगा, ठीक है ना। लेकिन वही एक इंसान है कि वो जो है ना उसके साथ इतने अच्छे तरीके से जो है वो रह रही हैं। बिल्कुल। और मैं ये बात बोलूँगी कि जैसे आपका कनेक्शन किसी के साथ भी बनता है तो आप उसके लिए इमोशंस भी रखते हो, आपके इमोशंस भी मतलब उसी तरीके से आप कह लो कि स्विंग करना शुरू हो जाते हैं। जैसे उन्होंने एक माँ की तरह पाला उनको, और जब उनको भेजती हैं वो, तो देखो कैसे उनकी अटैचमेंट होती है, हाँ, वो आपको नजर आती है। तो वाकई में ये चीज़ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि माँ जो होती है ना, मतलब वो वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली एक ऐसी, मैं कहूँगी कि ऊपर वाले ने क्या बोलेंगे, एक ऐसा मैं कहूँगी कि खूबसूरत तोहफा इस दुनिया को दे दिया हुआ है ना अपनी तरफ से, कि जिसको आप कभी भी शायद शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है और किसी भी हद तक चली जाती है। तो मैं कहूँगी कि माँ जैसा कभी भी कोई नहीं हो सकता आपके लिए। लेकिन मैं कहूँगी कि जिस तरीके से वो उनको पाल पोस रही हैं, प्यार करती हैं। देखो, पाल पोस सब लेते हैं, ठीक है ना, सब वर्कर्स कर लेते हैं, वहाँ पर हजारों वर्कर्स होंगे, लेकिन किसी एक के साथ अटैच हो जाना, इसका मतलब है कि उस इंसान की जो आप कह लो कि जो वाइब्रेशन है, जो एनिमल्स फील करते हैं, कि उनसे प्यार करते हैं, वो सबसे डिफरेंट है। अब इस पर मुझे सदगुरु की एक वीडियो याद आ गई। जब सदगुरु ने, याद है, हम लोगों ने वीडियो देखी थी, उसमें बोला था कि अगर कोई सांप आता है तो मतलब अगर आप उसकी सेंसेस को समझ जाते हो, ठीक है ना, और वो आपकी वाइब्रेशन को समझ जाता है ना, क्योंकि जो कोई भी एनिमल होता है उसको ये डर होता है कि हमें इससे खतरा है तो ये हमें मार देगा। लेकिन अगर आप उसको नॉर्मल तरीके से रहते हो, डरते नहीं उससे या उसको ऐसी वाइब्रेशन नहीं देते, तो वो आपको कुछ नहीं कहता। तो ये चीज़ वाकई में मुझे मतलब अब आकर ये चीज़ें समझ आती है। आप लोग बोलोगे सारी चीज़ें इसको अभी समझ आती है, बट क्या करें, कभी नहीं हम लोगों ने इस अंदाज से, इस नज़रिए से कभी चीज़ें देखी और ना कभी किसी ने समझाई है। लाइक जैसे मौसम को कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता है। नहीं, अब वैसे इतना नहीं लगता, पहले बहुत लगता था। हाँ, अब मैं ये बात करने लगी हूँ कि पहले मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन जब मैंने वीडियोस देखी और चीजों को थोड़ा सा समझा, तो मुझे भी ये चीज़ रियलाइज हुई कि शायद हम उनको ऐसी वाइब देते हैं कि भाई हम उनको
नुकसान पहुंचाएंगे या हम उनसे प्यार नहीं करते, कुछ अलग किस्म की वाइब देते हैं, इस वजह से वो हमारी तरफ इतना अग्रेसिव होते हैं। असल में एग्रेसिव भी होते हैं, और दूसरा जो है ना, अगर हम अपनी बात करें तो बचपन से जो है ना हमें एक चीज़ ये सिखाई नहीं जाती कि भाई वो जानवर है। मैं लोगों को देखता हूँ कि भाई लोग बिल्लियों को भी जो है ना पत्थर जो है वो मार मूर जो है वो देते हैं। तो शुरू से जो है ना हमें एक ही चीज़ सिखाई नहीं जाती, क्योंकि बिल्लियों का भी अगर आप देखें ना, बिल्लियाँ भी सेंस जो है वो कर लेती हैं। सब जानवर करते हैं। हाँ, बिल्लियों का तो मैंने अपनी आंखों से ये देखी ना चीज़ कि अगर आपको जानवरों से प्यार है या बिल्लियों से प्यार करते हैं तो बिल्ली खुद आपके पास आके आपके पाँव के साथ जो है वो लगेगी, प्यार वगैरह जो है वो करने की कोशिश जो है वो करती है। तो अभी देखो, सॉरी, हाँ नहीं बोलो। हाँ, तो इसी तरह हम अगर देखें ना तो हमें कुत्तों से, बिल्लियों से, या जो आपको एनिमल्स मिलते हैं उनसे प्यार करना जो है वो नहीं सिखाया जाता। हम क्या करते हैं, वट्टे मारते हैं, हम उन्हें भगाते हैं। अभी जैसे मैं रात को बैठा हुआ था बाहर, तो मेरे पास से कुत्ता गुजर गया, ना मैंने उसे कुछ कहा ना उसने मुझे कुछ कहा, ना वो डरा ना मैं डरा। ठीक है ना। तो वरना अमूमन यही होता है कि भाई दोनों एक दूसरे से भागते हैं। नहीं, वैसे ऑनेस्टली बोलूं, ये वट्टे शट्टे मारने वाला तो मैंने कभी नहीं सुना कि मतलब हमें ऐसा कुछ सिखाया जाता है। यार, लेकिन मैं ये जरूर फील करती हूँ कि ना हम लोग डरते हैं कि ये काट लेगा, इंजेक्शन लग जाएंगे। तुम लोगों को पता नहीं कितने लगते हैं इंजेक्शन? 14 पहले, अब नहीं पता, पहले 14 थे होते हैं। खैर, मुझे ये बहुत चीज भूल गई। तो मैंने ये चीज देखी है, जब आप किसी जानवर से डरते हैं ना और आप भागते हैं तो वो आपके पीछे और भागता है। हाँ। लेकिन जब आप मतलब बिना डरे खड़े रहते हैं ना तो फिर वो नहीं डरता। अभी जैसे हमारी ये नेबर में एक बिल्ली रहती है, तो उसको रोज हम लोग खाना डालते हैं, मतलब मौसम खाना डालता है उसको, तो वो डेली आएगी, वो ऐसे करके बैठी रहेगी कि उसके जब खाने का टाइम नहीं भी होगा, वैसे वो तब भी ऐसे देखती रहती है। उसको भी ना थोड़ी कामचोरी की आदत पड़ गई है। लेकिन फिर उसके अलावा जैसे इन लोगों ने मेरे से कल एक बात शेयर की, और कि जब बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो वहां पर एक कुत्ता है और एक बकरा है। उसको डेली ये लोग फ्रूट केक डालते हो, क्या करते हो? वो जो है ना केक टाइप जो है ना वो मिलता है, वो उससे जो है ना वो डालते हैं। जानवर भी जो शहरों के ना वो काफी डिफरेंट खुराक हो गई और वो जो है ना जब हमें देखते हैं ना, वो एक कुत्ता तो यूं ऊपर वो ना प्यार से, मतलब प्यार से किसी ने खाना खिलाने किसी का ना वो तो उन्होंने बांधा होता है ना दिन के टाइम, और बकरा भी बांधा होता है, दोनों जो है ना आ जाते हैं उस साइड पे। और ये एग्जैक्टली, तो ये देखो एक अफेक्शन बनना शुरू हो जाता है कि जानवरों को भी पता चलता है कि भाई ये हमारे साथ ना कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हमें प्यार कर रहे हैं, हमें फीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि मतलब, क्योंकि इन्होंने कल मेरे से बात शेयर की, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है मतलब थोड़ा सा स्पॉन्सर कर लेते हैं मिल मिला कर ना, कि ताकि उनको डेली अच्छा खाना जो है मतलब इसी तरीके से खिला सकें। लेकिन जो है ना एक चीज़ है, जैसे उसमें भी दिखाया गया कि आप जानवरों से प्यार करते हैं या उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो आपका कनेक्शन जो है ना वो उनके साथ जो बन जाता है, एक वाइब जो है ना वो मैच जो है वो कर जाती है, और फिर उन्हें भी जो है पता चल जाता है कि भाई ये वाला इंसान जो है ना ये मुझे नुकसान जो है बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। इवन मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं जहां पर जानवर जो है ना वो बल्कि अपने जो जिसके साथ वो अटैच होते हैं और रहते हैं, वो कभी उनको भूलते नहीं है। हाँ। वो उनको बहुत टाइम के बाद भी देखेंगे तो भी उनको वो याद कर लेते। तुमने एक वो वीडियो देखी, बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें एक डॉग ऐसे जा रहा होता है, छोटा सा पपी होता है मेरा हाल में, मतलब वो जो छोटे वाले डॉग नहीं होते, तो ऐसे गुजर रहा होता है एक आदमी, एक और साथ में क्या पता नहीं लेडी गुजर रही होती है, तो वो उसको ऐसे देख रहा होता है और उसमें वो पहचान जाता है कि उसकी पहले वाली ऑनर होती है, तो वो उसको पहचान जाता है। मतलब जो ये तो नहीं पता, मैंने वैसे देखी नहीं, लेकिन एक और एग्जांपल मेरे जहन में है कि हमारी कज़न का कुत्ता जो है वो चोरी हो गया था, तो उन्हें पता चल गया था कि भाई किसके पास है, वो गए थे, तो वो कुत्ता जो था वो उनके पास वापस आ गया था, उनके कदमों में बैठना शुरू हो गया था। हाँ, वो स्ट्रे डॉग था, वो उन्होंने पाला था। वैसे वो बहुत जानवरों की खिदमत करती हैं, ऐसे मैं बात करूँ, मतलब कुत्ते हो, बिल्लियां हो, कुछ भी हो, बाहर उनको कोई भी रोड पर नजर आएगा, उन्होंने घर ले आना है, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर हैं, तो वो खुद ही उनका फिर जो है ट्रीटमेंट करती है, उनको सीख रही है। फिर ऑब्वियसली जहां पर जानवरों को प्यार मिलता है वो वहां पर आते हैं, फिर वो खाना भी उनको डाल देती हैं। तो मुझे वैसे ये लगता है अब आकर मैंने ये चीजें समझी हैं कि आपको अपने खाने में से जानवरों के लिए भी खाना जो है वो रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए भी कुछ हिस्सा रखो, ताकि मुझे ऐसा फील होता है। और जैसे हम वीडियोस देखते हैं ना, तो बहुत
मतलब अच्छा लगता है कि ये आपको खुद अपने अंदर एक वाइब जो है वो बनानी पड़ती है कि आपसे कोई थ्रेट ना फील करे। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि हम थोड़ा सा जो है वो करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बिल्ली जो है जो रोज आती है, एक दिन ना आए या 2 दिन ना आए, तो मैं फिर कहता हूँ 2 दिन हो गए आई नहीं तो फिर जो है ना मुझे घर वाले कहते हैं सब्र कर ले, आज की कहीं घूमने फिरने जो है वो गई होगी, फिर वो वापस जो है आ जाती है। तो मैं ये कहता हूँ वो एक बिल्ली जो है वो 2 दिन ना आए तो मुझे इतना जो है वो होता है कि हाय आई नहीं। तो उनका तो इतना कनेक्शन है, वो 6 महीने जो है उनके साथ रहती हैं, उन्हें दूध पिलाती हैं, फिर जब वो छोड़ के आती हैं तो जैसे वो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहते हैं उनका उस जगह दोबारा जाने का दिल नहीं करता। तो वाकई ये इमोशन और ये सेंटिमेंट जो आपके जो है ना, बेशक वो इंसान हो या जानवर हो, उनके साथ जब आपके कनेक्ट जुड़ जाते हैं ना, तो फिर जब वो चले जाते हैं ना, तो जैसे हम इंसानों की बात करें, किसी इंसान के साथ आपका बहुत प्यार और वो इस दुनिया से चला जाए तो फिर उस घर में भी जाने का आपका दिल नहीं करता है। वाकई में होता है, लेकिन खैर इसीलिए कहते हैं डिटैच होना आना चाहिए, क्योंकि जो जानवर हैं वो जाहिर सी बात है जंगल में ही खुश रहेंगे, वो कैद खुश नहीं रहेंगे, तो उनकी खुशी भी जो है वो देखनी पड़ती है। एनीवे गाइस, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप में से किस किस को जानवरों से डर लगता है, ये पूछना चाहती हूँ मैं। और कौन कौन ऐसे हैं जिनको पहले डर लगता था हमारी तरह अब थोड़े नॉर्मल होते जा रहे हैं। मैं खुद नॉर्मल होती जा रही पहले से। तो भाई इसका भी श्रेय सारा जो वीडियोस हम देखते हैं उनको जाता है, क्योंकि उनकी वजह से कुछ समझ हम लोगों को भी आना शुरू हो गई हुई है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसी के साथ हमें ज्यादा वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर। गुड बाय।